Hi guys, welcome to our YouTube channel. I am Kinchit Baldia. We are going to learn some new concepts. We will begin by maths. Our today's topic is arithmetic progression. We will study first what is sequence. Sequence is a set of numbers arranged in a definite order. The numbers here are arranged in a proper order. Example, natural numbers, whole numbers. In sequence order, terms are represented as T1, T2, T3, Tn. Generally, sequence is written as Tn. Now we will understand how the terms are assigned in a sequence. Following is the given example. 3, 5, 7, 9, 11. Numbers are assigned as follows. T1 is assigned to 3, T2 is assigned to 5, T3 is assigned to 7, T4 is assigned to 9 and T5 is assigned to 11. So the first number is given as T1, second number T2, third number T3, fourth number T4, fifth number T5. In this manner the numbers are assigned in a sequence. Now we will study what is AP. तो AP क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए. तो अभी द नंबर्स दिए गए 1, 3, 5, 7, 9, 11. तो अभी T1 इज 1, T2 इज 3, T3 इज 5, T4 इज 7, T5 इज 9 एंड T6 इज 11. तो हमने नंबर्स पता चल गया कि T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है. अभी जो भी दो नंबर्स होंगे उसके हम डिफरेंस निकालेंगे. जैसे T1 का 1, T2 माइनस T1, तो 2 माइनस 1 तो आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. फिर T3 माइनस T2 आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. T4 माइनस T3 7 माइनस 5 2. T5 माइनस T4 9 माइनस 7 2. T6 माइनस T5 11 माइनस 9 2. तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि जो भी डिफरेंस है दो टर्म के बीच में वो कांस्टेंट है. जैसे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 के बीच में जो भी डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, एक जैसे. तो अभी AP कैसे हम लोग पता चलेगा कि AP है कि नहीं. AP इज द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant. Therefore, the above sequence is an AP. AP क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव. AP मतलब क्या हुआ कि जो भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ना सीक्वेंस में वो कांस्टेंट होने चाहिए. तो AP का वही मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस आता है वो सेम होना चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द अबव सीक्वेंस कैन बी सेड एज AP. बट दैट कांस्टेंट नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, which means that the difference which has occurred by subtracting the two numbers can be positive, negative, or zero. So we will see examples of them one by one. For positive one we have seen in the AP example, in the previous example. Now we will see of negative. Now the numbers are given as -1, -3, -5 and -7. So here T1 is -1, T2 is -3, T3 is -5, T4 is -7. So same only T2 minus T1, which is T2 is -3 minus of -1, which is equal to -3 minus minus plus 1 -2. Similarly, T3 minus T2 is equal to -5 minus of -3, -5 minus minus plus -2, and
T4 minus T3 minus 7 minus of minus 5 minus 7 plus 5 minus 2. Here T1 is minus 3 and common difference is minus 2. So the above sequence can be said AP if the common difference is negative. Now in the third case, when the common difference is 0, we will understand it by taking an example. 7 7 7 7. तो आपने देखा है T1 7 है, T2 7 है, T3 7 है, T4 7 है. तो T2 minus T1 7 minus 7 0. T3 minus T2 7 minus 7 0. T4 minus T3 7 minus 7 0. So here T1 is 7, common difference is 0. तो ये सीक्वेंस भी AP है, बट इधर कॉमन डिफरेंस है जो 0 है. Here T1 is known as A, which is called the first term of an AP, and D is the common difference between two consecutive terms of an AP. Now we will study the general formula of an AP. We will understand this formula by solving an example. The given sequence here is 2 4 6 8. यह सीक्वेंस AP दिया गया है. AP दिया गया है तो हमको पता है T1 is 2, T2 is 4, T3 is 6, T4 is 8. अभी AP बोला गया है तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट है, ये लोग ने बता दिया गया. तो हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या होएगा, A इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म, तो T2 माइनस T1 इस D, क्योंकि T2 माइनस T1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा. तो T2 क्या है 4 माइनस 2, तो D आ गया 2. देयरफॉर A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 2. को पता चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है. तो अभी हम लोग पता लगा कि जनरल फॉर्मूला कैसा है. तो अभी इधर देखिए ऊपर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D दिया गया. तो अभी हम क्या करेंगे, T1 माइनस में तो RHS में जाके प्लस हो जाएगा. तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D. तो आप देखिए कि T1 2 है और D है, तो T2 प्लस 2 क्या हुआ 4, जो हम लोग को आया सेकेंड टर्म. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है. या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T1 क्या है A फर्स्ट टर्म, तो A प्लस D. तो इसको हम सेकेंड ले लेते. चलो अभी T3 का फॉर्म T माइनस T2 इज इक्वल टू D, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट. तो T2 को वैसे ही शिफ्ट लेके T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D. अभी T2 प्लस D क्या है A प्लस D सेकेंड इक्वेशन. तो T2 के बदले लूँगा A प्लस D प्लस D फ्रॉम 2. अभी D प्लस D 2D, टू A प्लस 2D. तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3. तो T3 का वैल्यू आया. अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो भी समझ जाओगे. A क्या है मेरा 2, D क्या है 2, 2 2 ज़ा, तो इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6. तो आया हमको थर्ड टर्म 6. सिमिलरली T4 के लिए भी यही फॉर्मूला होएगा, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू D. Therefore T4 is equal to T3 plus D. अभी T3 का क्या दिया है, A plus 2D plus D from 3. A plus 2D plus D 3D. तो T4 is equal to A plus T 3D. T4 is equal to A क्या है 2 plus 3 into 2, 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 8. तो हम लोग को फोर्थ वैल्यू भी 8 आ गया. तो हमको पता चल गया कि D ऐड करते जाएगी और T1 को सेम रखिए तो हो जाएगा. तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है Tn
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्यों? क्योंकि ऊपर आपने देखा है कि एन की जगह 4 है और इधर 3 है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। इधर 3 है और इधर 2 है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो एन माइनस वन। और डी, क्योंकि डी मल्टीप्लीकेशन में, तो इससे टी एन का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। टी एन इज इक्वल टू ए माइनस वन डी। अभी इसको मेरे को ये फॉर्मूला में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? टी फोर इज इक्वल टू ए प्लस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस वन डी, विच इज इक्वल टू ए प्लस 3d। टी फोर इज इक्वल टू ए प्लस 3d। तो इस तरह से टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अभी हम लोग टी एन के रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाए कि टी एन के सम होते कैसे और सॉल्व कैसे करते। अभी द फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन ए पी 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग को बोल दिया क्या कि ए पी है सीक्वेंस, तो सोल्यूशन क्या आएगा? टी वन इज इक्वल टू 2, टी टू इज इक्वल टू 7, टी थ्री इज इक्वल टू 12। तो टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। हमको इधर पता चल गया कि फर्स्ट टर्म इज 2 और कॉमन डिफरेंस इज 5। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 5। अभी 10 बोला है, तो यार फॉर एन इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमको 10 टर्म फाइंड करना है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस वन डी, तो एन की जगह 10 आएगा, तो टी टेन इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन डी। अभी ए का वैल्यू क्या है? 2 प्लस 10 माइनस वन 9, डी का वैल्यू 5, तो 2 प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 47। तो हमको टी टेन आ गया 47। तो देयरफॉर द 10th term of an AP is 47। अभी हम सेकेंड सम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो अभी क्वेश्चन क्या है? 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। तो अभी हम लोग पहले 2 डिजिट नंबर कहाँ से रेंज होते हैं? 10 से 99 के बीच में ये रेंज होते हैं। अभी हमको देखते हैं कि इसमें से कौन से नंबर से जो 4 से डिविजिबल होते। तो नंबर्स, तो 4 का टेबल कहते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 आ गया। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो तीनों में 4 का डिफरेंस है। लास्ट में आएगा 96, क्योंकि 24 4 जा 96। ये देखो 24 इंटू 4 जा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 96। तो 24 4 जा 96। तो मेरा T1 आ गया 12, T2 आ गया 16, T3 आ गया 20 और लास्ट नंबर 96 है। पर यह कौन सा टर्म है ये मेरे को नहीं पता। तो Tn इज इक्वल टू 96, क्योंकि लास्ट नंबर दिया गया n इज 96। इधर फर्स्ट टर्म 12 है, तो T1 है, T2 है, T3 है, डॉट 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 Tn आ गया है, क्योंकि लास्ट नंबर ही दिया है। मेरे को ये नहीं बोल रहा कि 96 कौन सा टर्म है, तो इसको मैं Tn अज्यूम करूँगा। तो अभी मेरे को n फाइंड करना है, तो सेम Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। अभी Tn क्या है? 96 इक्वल टू a क्या है? 12 प्लस n माइनस वन। डी कैसे फाइंड करेंगे? T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, तो डी आ जाएगा 4। यही करेंगे 96 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू एन 4 एन, 4 1 जा 4। साइन क्या है? 1 के साथ माइनस, तो मल्टीप्लाई करते तो साइन भी आएगा 4 माइनस माइनस 4। तो अभी 12 माइनस 4 8 प्लस 4 है इज इक्वल टू 96। तो अभी शिफ्ट होएगा 96 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 है। तो 96 माइनस 8, तो 96 माइनस 8
कैंसल 8 1 सा 16 माइनस 8 8 तो 88 तो 88 इज इक्वल टू 4 है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 88 डिवाइड होएगा 4 से। तो 88/4 कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 तो n इज इक्वल टू 22। हम लोग थर्ड सम देखेंगे। थर्ड सम में क्या दिए, द 10th and 18th term of an AP are 25 and 41 respectively, then find 38th term of an AP. Similarly, 9th term of an AP is 99, then find the value of n। तो एक ही क्वेश्चन में हमको 3-4 चीज़ें फाइंड करनी है, तो हम लोग उसको सेग्रीगेट करेंगे वन बाय वन। तो पहले पार्ट में क्या है दिया है, द 10th and 18th term of an AP are 25 and 41 respectively। तो हमको पता है कि T10 इज 25, T18 इज 41। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, ठीक है। अभी इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो T10 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 10 माइनस 1d। Tn का फॉर्मूला क्या आएगा, सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो T10 का क्या आएगा, a प्लस 10 माइनस 1d। तो a प्लस 10 माइनस 1 9d। तो T10 आ गया a प्लस 9d, इक्वेशन 3। सिमिलरली T18 का हम डायरेक्ट कर सकते a प्लस 17d, क्योंकि जो n रहता है उसे एक कम d रहता है, तो a प्लस 17d, तो इक्वेशन 4। अभी T10 का वैल्यू क्या है, 25। तो 25 इज इक्वल टू a प्लस 9d और a प्लस 17d का वैल्यू, T18 का वैल्यू क्या है 41। तो 41 इज इक्वल टू a प्लस 17d। तो अभी इसको हम देते हैं 5 और 6। अभी हम लोग इसको लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि a कॉमन है दोनों में। तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, आप 5 फ्रॉम 6 भी कर सकते हो, 6 फ्रॉम 5 भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 एंड a प्लस 17d इज इक्वल टू 41। तो माइनस का साइन आएगा, ए कैंसर, क्योंकि लाइक थे दोनों सेम है। अभी 17 माइनस 9 कितना होएगा 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, क्योंकि 17 का साइन ग्रेटर है, तो माइनस 8 इज इक्वल टू 41 माइनस 25 16 माइनस 16, क्योंकि 41 का साइन ग्रेटर नंबर है, तो माइनस माइनस साइन कैंसर। तो 8d इज इक्वल टू 16, therefore d is equal to 16/8, therefore d is equal to 2। तो हमको d का वैल्यू आ गया, तो पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 5, सॉरी 3 नहीं, क्योंकि 3 के बाद 5 है, इन इक्वेशन 5। तो 25 इज इक्वल टू a प्लस 9d इज इक्वल टू a प्लस 9 इंटू 2, a प्लस 18 इज इक्वल टू 25, which is equal to 25 minus 18 is equal to a, therefore a is equal to 7। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है हमको, T38 फॉर n इक्वल टू 38, T38 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1d। a का वैल्यू 7, इसको देंगे 7 और इसको देंगे 8, 7 प्लस 37 इंटू 2 फ्रॉम 7 and 8, 7 plus 37 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, कैरी 1 प्लस ऐड करेंगे तो 7 4।
74 प्लस 7, तो 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 1 8, तो T38 इज इक्वल टू 81। तो हमारा तीन चीज सॉल्व हो गया है। एक तो ये वाला फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है, सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया है, अभी थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग को Tn दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन में दिया था हम लोग को, Tn कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 99। तो Tn इज इक्वल टू 99। तो सेम Tn का फॉर्मूला था, सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो Tn क्या है, 99 इज इक्वल टू a क्या दिया है हम लोग को, 7 प्लस n माइनस 1, और d क्या है 2। कहाँ से आया ये, फ्रॉम 7 and 8 दिख रहा है इधर साइड में आप लोग को। तो 99 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू एन, 2n, 2 वन ज़ा 2, 7 माइनस 2 5 प्लस 2n इज इक्वल टू 99। देयरफॉर 99 माइनस 5, क्योंकि LHS में जाके माइनस होएगा, इज इक्वल टू 2n, प्लस है तो उधर जाके हुआ तो माइनस। 94 is equal to 2n, therefore n is equal to 94 divided by 2, therefore n is equal to 94 divided by 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 9 था 8, 9 माइनस 8 1, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14, तो n is equal to 47। तो हमारे सब आंसर लिख दिए। तो therefore a is equal to 7, d is equal to 2, फिर हमको T38 इज इक्वल टू 81 एंड n इज इक्वल टू 47। तो इसी तरह हम लोग ने Tn के बारे में पढ़ लिए। अभी आगे हम लोग Sn और फिर डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू AP और Tn के बारे में पढ़ा है। बाकी के कंसेप्ट हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फर्दर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।